So, how are you? I think you all are fine. So, today we have to continue with the nanotechnology, right? So, at the last class, we have actually bind up the class from the nanotechnology, I think. Fine. So, before starting the nanotechnology, there is some terms are remaining in the which is considered under the IT, okay? And the terms like the like dark net, okay, dark net, this is also called the dark web, dark web. So what is the dark net or which is considered the dark web? Actually जैसे अभी ऐसा सोचो कि if you are just talking about the internet, okay, if you are just talking about the world wide web, www dot, fine, okay. So here is the two types of the web actually available in the www dot, okay. The most of the portion of the internet, or you can say the web, is considered as the surface web, okay. Which one? Surface web, clear. And the second, which is considered as the deep web, okay. And then here is the dark web, okay, clear. So most of the proportion of the web, or you can say the internet, is covered by the surface web, okay. Acha, one more thing is there, not most of the covered by the surface web, actually the most of the web is covered by the deep web. Approx, this is covering approx 90% of the total internet informations, clear. That means ki this and the surface web is covering the 5% of the total, okay, and this dark web is covering, this is also covering the 5%. Acha, one more thing is here, the surface web, that means ki the very upper layer, or you can say the very first layer of the web, clear, okay. That means जो हम लोग यूज करते हैं, फाइन, इफ यू आर यूजिंग, तो आप अगर हमने गूगल में कोई सर्च इंजन में, कोई भी सर्च इंजन, गूगल हुआ, फायरफॉक्स हुआ, एनीथिंग, इफ वी आर सर्चिंग एनीथिंग, जस्ट टाइपिंग एनीथिंग एंड वी फाइंड द रिजल्ट, ओके, ऑन द डिस्प्ले. सो दिस इज जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ना, हमें लगता है कि बहुत इंफॉर्मेशन है, ओके, बट दिस इज ओनली 5% ऑफ द टोटल वेब, ठीक है, कितना? ओनली 5%, clear. And the deep web, which is covering approx 90%. So this is the अच्छा, एक चीज और, it the deep is containing those types of the sites, okay, those types of the sites which cannot be accessed from search engine, okay, which cannot be accessed from the search engine. That means कि कोई गूगल का सर्च इंजन, जैसे सपोज दैट द गूगल इज लार्जेस्ट सर्च इंजन टुडे, ओके, सो गूगल सर्च इंजन इज नॉट able, you can say the Google search engine is not enabled to search this kind of the sites which is considered under the deep web. Only authority, or you can say the authorized personnel are having the some codes, having the some passwords, okay, through which they can search this kind of the sites, okay. So 90% of the web is considered as the deep web, ओके. ये भी न्यूज में ऐसा ना, ये वर्ड रहा है डार्क वेब, ओके. सो व्हाट इज द डार्क वेब नाउ? डार्क मीन्स, यू गाइज वेरी वेल नो दैट द डार्क मीन्स अंधेरा, ओके. सो इट इज कवरिंग द 5% ऑफ टोटल इंटरनेट कंटेंट, ओके, एंड द साइट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द डीप वेब, ओके, कैन ओनली एक्सेस्ड विद अ tor browser used for both legal and the illegal purpose, okay. मोस्ट ऑफ द, अब जैसे आपने ऐसा सुना होगा ना कि कहीं का क्या है, मतलब गॉडफादर है कोई, ओके, जैसे अंडरवर्ल्ड कोई डॉन है, या पर्टिकुलर कोई सिंडिकेट चल रहा है, राइट. सो कोई सिंडिकेट चल रहा है, जैसे किसी भी चीज़ का क्या है, स्मगलिंग का सिंडिकेट चल रहा है, ओके, लाइक द स्मगलिंग ऑफ द सम नार्कोटिक्स, ओके, और यू कैन से द स्मगलिंग ऑफ द व्हाट सम, आप कह सकते हो कि जो भी हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के जो भी स्टैचूज वगैरह हैं, ठीक, तो स्मगलिंग फॉर दैट, और स्मगलिंग फॉर द येलो मेटल, दैट इज गोल्ड, ओके. सो इन दैट केस द काइंड ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज, ओके, काइंड ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज, एक्चुअली दिस काइंड ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज इज कंसीडर अंडर द डार्क वेब. अब इलीगल है
तो यू नो वेरी वेल कि the some of the firms, some of the companies, some of the organization which is exist illegally, okay, they have the access the dark web, okay, they have access to explore the dark web. Clear? Acha. This is also, this dark web is also stand for the legal service also. ठीक है? So this is also stand for the legal activities. Legal activities like कैसे legal activities? सपोज दैट दी एनी आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारे ऐसी ब्यूरोज होते हैं, ओके, कैसे, जैसे कि जैसा लाइक इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, ओके, यू कैन से द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ओके, ऐसे किसी और कंट्री का, फाइन, जैसे मोसाद, ठीक है, दिस इज अ इजराइल्स एजेंसी, ओके, सो ऐसी एजेंसीज जो होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, ओके, दीज एक्टिविटीज आर कंसीडर अंडर द डार्क वेब. Okay, so this is the what? This is the dark web. And surface web, this is just covering the 5% of the total internet. Okay, and anyone can what? Anyone can explore these sites. ठीक है, in the surface web. Clear? Okay. अच्छा, एक कुछ हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था, तो रिमेनिंग टॉपिक में हमें एक चीज समझना था, क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, चलो अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing, okay, and one more thing is here, cloud computing, and the second is the edge computing. Edge computing, okay, cloud computing and the edge computing. There is two words. What is the meaning of the cloud and what is the meaning of the edge? Edge means बोला जाए तो बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो बिल्कुल एकदम लास्ट जो एरिया होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है, ठीक है, एज सरफेस, ओके, सो दिस इज कंसीडर द एज, दिस इज कंसीडर द एज, ओके, एंड व्हाट इज द क्लाउड? क्लाउड मीन्स व्हाट? क्लाउड मीन्स बादल, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू हियर, प्लीज डोंट गेट बी कंफ्यूज कि दिस इज रिलेटेड टू द एनी टाइप्स ऑफ द रेडिएशन विच इज द व्हाट, विच इज द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द cloud area of the atmosphere. No, this is not related to that. Okay, the cloud word is here, which is actually representing that what? This is representing that any kind of the data, okay, जैसे हमने बात किया यहाँ पे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्चुअली दिस इज, अभी सपोज दैट कि इन योर मोबाइल फोन्स, ओके, यू हैव अवेलेबल व्हाट? यू हैव अवेलेबल द गूगल फाइल्स, okay, so Google storage you have, that means ki if you can store, you can process, okay, you can retrieve the data, ठीक है, in a on demand what? On demand storage capacity or on demand storage place, okay, so this is the cloud computing and cloud computing is actually considered as the on demand availability of computer system resources, ठीक है, especially data resources and the computing power without direct active management by the users. Suppose that if you have stored some datas kind of the PDF, kind of the videos, kind of the photos, okay, जो आप अपने मोबाइल में करते हो, आपने उसको किस पे किया? गूगल फाइल पे स्टोर कर रखा है, फाइन, सो यू कैन एक्सेस दिस डेटा फ्रॉम एनी प्लेसेस, फ्रॉम एनी सिस्टम. उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? यू हैव टू जस्ट open the Google files and after that you have to Google Drive, Google files, okay, and you have to just put your what? Put your password and you can access those data at any places. ठीक है, कहीं भी आप कर सकते हो. आप चाहे दिल्ली में हो तो दिल्ली में, मुंबई में मुंबई में, या आउट ऑफ द इंडिया हो तो वहां भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो दिस इज कंसिडर द व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, ये क्या बोला जाता है इसको? क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? एक्चुअली द क्लाउड इनेबल्स, आप ऐसे बोल सकते हो कि क्लाउड enables users, okay, cloud enables users to access the same file, okay, access the same file and applications, files and applications
okay, same files and the applications from almost any device, from almost any device, okay, at any place, clear, without without direct active management by the user, okay, by the user. Suppose that you have stored something in your PC, ठीक है, in your personal computer you have stored, in your laptop you have stored something, okay. So by the use of this cloud storage, okay, by the use of this cloud storage, this cloud is actually enables you guys, okay, that means enables the users for the access the same files and the applications, okay, access the same file, that means ki the same files which you have stored in the what, stored in the Google Drive, okay. So from almost any device, that means ki you have stored in your PC, but you can access that informations, access that files, access that applications and the informations from any device, from your friend's device also, ठीक है, और फ्रॉम एनी साइबर कैफे में जाकर के आप पुट करना है आपको पासवर्ड, यू हैव टू जस्ट पुट द पासवर्ड एंड यू हैव रीच्ड एट योर फाइल्स, ओके. सो दिस इज कंसिडर्ड द cloud computing, okay. Now the word is here, the second word is edge computing, okay. The edge computing is nothing, this is considered the edge of network, okay. इसको क्या कंसीडर करोगे एज कंप्यूटिंग को, दिस इज द, अब ये पूरा क्लाउड है, ओके, कंप्लीट क्लाउड है ये, और एज नेटवर्किंग इज कंसिडर एज द, एज कंप्यूटिंग कंसिडर द एज ऑफ नेटवर्क, okay, edge of network, that means the data is analyzed locally closer to where it is stored in real time without latency, ठीक है. Edge of networks, that means data is analyzed at the edge of network, okay, at the edge of network before being analyzed locally closer to, ये कुछ और लिख दिया था मैंने, analyzed locally closer to okay, closer to where it is stored in real time without latency, okay, without latency. सो अगर इसको ऐसे ड्राइव करो, जैसे सपोज दैट कि देयर इज क्लाउड, ये क्या है आपका क्लाउड, ओके, एंड फ्रॉम द क्लाउड, ठीक, द डेटा इज पास्ड, और ऐसे समझो अगर इफ यू आर जस्ट क्रॉसिंग द क्लाउड लेयर और नीचे आ रहे हो आप, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, द एज ऑफ द क्लाउड विच इज कंसिडर्ड द वर्ड फॉग, ठीक है. अभी जब कभी आप फ्लाइट में बैठ के ऊपर जाते हो ना, ठीक, तो सबसे पहले आपको फॉग मिलता है, ठीक, आफ्टर दैट यू रीच एट द क्लाउड सरफेस, ठीक है, ऐसा होता है ना. तो दिस इज द एज इज कंसिडर द व्हाट, एज इज कंसिडर द फॉग, ठीक है. एंड ठीक है, एंड हियर इज व्हाट, हियर इज मॉडेम, मॉडेम इज योर व्हाट, कंप्यूटर. सो अभी आप ऐसा सोचो, द क्लाउड इज व्हाट, क्लाउड इज ओपन एट एनी प्लेस इन एनी डिवाइसेस, ठीक है, और दिस वन इज द फॉग, दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग द
एनालिसिस ऑफ द डेटा लोकली, ओके, क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड। तो जहां पे वो चीज स्टोर था एज कंप्यूटिंग में, एट दैट सेम प्लेसेस द डेटा कैन बी ओपन विदाउट एनी लेटेंसी, ठीक है, विदाउट एनी लेटेंसी इन द रियल टाइम, ओके। ओके, what is the use of this cloud computing and the fog or the edge computing? Like the by the use of what, ऐसा लिख सकते हो ना, use of 5G, ठीक है, and plus what, use of 5G plus wireless technology, Wi-Fi also, ठीक है, wireless technology, okay, and plus it is resulting the IoT, okay. So this kind of the IoT and this kind of the edge computing, okay, kind of IoT, the cloud and the edge computing is providing the applications kind of the internet of the things, okay. That means suppose that you have to just switch off your refrigerator from any place, okay, and by the using this cloud computing, okay, you can give the command at any place from any devices, ठीक है। आपको जस्ट वो चीज़ अपना पासवर्ड वगैरह जो कुछ है अपना उसको पुट करना पड़ेगा, इसके अंदर फिल करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द कंट्रोल ऑफ द डिवाइसेस, एंड दिस इज कंसिडर्ड द व्हाट, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, क्लियर, ओके। सो दीज आर एक्चुअली डिलीवरी ऑफ द होस्ट सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सो पब्लिक सर्विस में भी इसका यूज हो सकता है, प्राइवेट सर्विस मैनेज द कंट्रोल एंड द सिक्योर एट लोकल डेटा सेंटर, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड, दीज आर द एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द एज कंप्यूटिंग, ठीक है। चलो, सो ये कंप्लीट हुआ था हमारा IT, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सो टुमारो वी हैव, सॉरी नॉट टुमारो, yesterday we have bind up the session from the nanotechnology, okay, okay. So here is the word nano, ठीक है, and what is the meaning of the nano? If you are just talking about the nano, so nano is the actually what? This is a Latin word, okay, old Latin word, okay, ठीक है, which means nano means dwarf, okay, nano means dwarf मतलब आप समझते हो ना, बौना, बिल्कुल छोटा, okay. So this is the nano means dwarf, ठीक। So you can assume that if something is dwarf, that means कि उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, क्लियर। सो अभी अगर हम ऐसे बात करें कि व्हाट इज द नैनो, ओके, सो टेक्नोलॉजिकली इट्स रिपर्स दैट द, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ओके। सो नैनोमीटर इज द 9th part, or you can say the 9th portion of a meter is considered as the what nanometer. That means if we are just talking about the 1 nanometer, 1 nm is equal to 10 to power minus 9 m, okay, 10 to power minus 9 m. So this is the what, this is the 1 nanometer. अच्छा, माइक्रोन पता होगा ना, what is the micron? 1 micron is equal to 10 to power minus 6 m. What is the angstrom? Angstrom is 10 to power minus 10 मीटर, क्लियर। सो इसी तरीके से क्या, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 व्हाट मीटर, ओके, क्लियर। चलो, सो दी अब बात करते हैं व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। सो नैनो टेक्नोलॉजी इज मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, और मोर सिंपली द बिल्डिंग द थिंग्स, okay, the size of one atom or one molecule with the programmed precision, okay. That means here in the nanotechnology we are just talking about to reduce the
साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और साइज ऑफ द एटम्स। क्लियर? उनके साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है, एंड उनकी जो पोटेंसी है, वी हैव टू जस्ट इंक्रीजेस द पोटेंसी। ओके, सो बाय रिड्यूसिंग द साइज, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट बिहाइंड दिस? दैट मीन्स ऐसा सपोज करो आप, इफ यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द साइज, ओके, एंड इनहांसिंग द पोटेंसी, सो द साइज ऑफ द कंप्लीट डिवाइस इज गेट व्हाट, द कंपैटिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा। क्लियर? सपोज दैट, और सपोज करना क्या है, आप सब ने फेस किया होगा कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द एलसीडी टीवी, ओके, जो टीवीज आती थी घर में, ओके, वो कैसी होती थी, जस्ट अ ब्लैंक व्हाट, ब्लैंक डिस्प्ले, ओके, एंड आफ्टर दैट ये सपोज करो कि ये टीवी होती थी, ठीक, तो इसके पीछे इतना बड़ा था, क्या होता था, इसका पीछे पूरा सिस्टम लगा होता था। ओके, सो दिस वन इज द व्हाट, दिस वन वाज द टीवी। ठीक है, ऐसा समथिंग, यहाँ पे टीवी होता था रियल, ओके, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द बैक हम्स, ओके, but after the introduction of the what, introduction of the LCD, or you can say today this is the time of the LED, and not that LED, Android TVs are also। ठीक है, so जब LCD आई तो this is the like this, just नीचे स्टैंड। क्लियर? LED आई दस, अच्छा, ये जो बने ना, इनके थोड़ा सा इधर ऊपर सरफेस थोड़ा सा इधर उठा हुआ, समथिंग थोड़ा सा उठा हुआ। क्लियर? बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द LED, दिस इज जस्ट अ प्लेन, और ज़्यादा उसको क्या कर दिया, विड्थ ऑफ द टीवी इज गेट रिड्यूस्ड। सो हाउ कैन दिस हैपन? एक्चुअली इन दिस केस द आप कह सकते हो द रिडक्शन, ओके, यू कैन से द डिक्लिनेशन इन द साइज ऑफ द डिवाइसेस और अप्लायंसेस, एक्चुअली रिजल्टिंग द reduce the size of the devices, uses size of the, आप कह सकते हो स्मॉल यूनिट्स ऑफ द लाइक द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स यूजिंग इन द टीवी। दैट मीन्स कि नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि हमने जो भी उसमें यूनिट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या यू कैसे छोटे छोटे डिवाइसेस लाइक द आईसी वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किटेड मदरबोर्ड, ओके, और डायनमो, क्या बोलते हैं इसको, डायोड, ओके, डायोड ट्रायोड, फाइन, स्विचेस, ओके। So there is what, there is a reduction in the size of those small electronic devices, and that's why the appliances size is also what, get the reduced। ठीक है, ये सब उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट है। क्लियर? ओके, सो द आइडिया ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इज देयरफॉर नो टू मास्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर इन एन इंटेलिजेंट मैनर टू डेवलप हाई एफिशिएंट सिस्टम। ओके, दैट मीन्स कि हाई एफिशिएंट डेवलप करने के लिए, ओके, दिस इज द वर्ड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन एन इंटेलिजेंट मैनर। ओके, जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, इन्हांस कर देना है। फाइन, उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या करना है, हमें इन्हांस कर देना है। ओके, सो दिस इज कंसिडर द नैनो टेक्नोलॉजी। सो in a very simple words we can say that the nanotechnology can be used to create the many new materials and devices with a vast range of the applications such as in medicine, electronics, biomaterials and the energy production। अभी जब हम applications की बात करेंगे तो the applications of the nanotechnology, so the applications of the nanotechnology is very vast। okay, there is a various applications in the field of the agriculture, in the field of the medicines, in the field of the food industries, in the field of the electronics, in the field of the environment also। okay, that means कि it can also the manage the what, manage the environment। ठीक है, and how it can manage the environment, ठीक है, बात करेंगे अभी उस पर कि how the nanotechnology is very useful to reduce or you can say to tackle the problems related to the air pollutants, related to the water pollutants। ठीक है, तो अभी उस पर हम बात धीरे से करेंगे। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग इज हियर, देयर इज इनिशिएटिव इज हियर, द इनिशिएटिव नेम वाज द नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ओके, अच्छा,
नाम इसका दिया गया द नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ओके, यू गाइस माइट बी कंफ्यूज्ड, कैसे नेशनल लिखा हुआ है तो मैं पूछता हूँ कि ये इनिशिएटिव कहाँ का है। ओके, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, तो दिस इज द नेशनल, तो नेशनल देख करके आप बोल सकते हो कि दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट no dear, this is the national nanotechnology initiative which is actually executed by the US, ठीक है, which state, the USA, ठीक है, so this is the initiative of the USA and the federal government program was this was the federal government program, that means कि आपको पता है कि बहुत सारे states मिलके 50 states मिलकर के क्या बने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट बना है, क्लियर। ओके, सो द फेडरल गवर्नमेंट इज व्हाट, फेडरल गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो सबसे सुप्रीम, तो यूएसए का गवर्नमेंट है। ओके, लाइक हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे फेडरल कोर्ट होता है। फाइन, ओके, सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हाट, यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम for the science, engineering and the technology research and development for the what, nano scale project. Okay, so this is the initiative and this is the program regarding the science and technology, and which is actually especially for the development of the technology related to the what, related to the nanotechnology. Clear? Okay, so if we are just talking about the evolution of the nanotechnology, देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम लोग देखते हुए चलेंगे कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्लियर। ओके, इन 1959, ठीक है, एक्चुअली देयर वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट नेम वॉज द रिचर्ड फेमन, ओके। सो इन द ईयर ऑफ 1959 द रिचर्ड फेमन गेव अ लेक्चर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, गेव अ लेक्चर, रिचर्ड फेमन्स लेक्चर and the title of that lecture was, title of जो उन्होंने 1959 में लेक्चर दिया था, टाइटल there is plenty of room at the bottom. Okay, the lecture name was the there is plenty of room, okay, at the bottom. Okay, what is the meaning of this? Actually he outlined the possibility for a new scientific field actually, okay, by this lecture, ठीक है। there is plenty of room at the bottom, that means कि bottom में, bottom means what, अभी bottom का मतलब क्या होता है, जैसे base, clear। so जैसे अगर हम बात करें कि what is the bottom, or you can say what is the base of this pen, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका बेस है, तो मोस्टली इसमें क्या है, अगर प्लास्टिक ना होता तो ये पेन नहीं बनता, क्लियर। सो दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से द एटम ऑफ द प्लास्टिक इज कंसीडर द बॉटम, और यू कैन से द बेस ऑफ दिस पेन, क्लियर। सो द लेक्चर टाइटल वाज द देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, एंड बाय दिस लेक्चर the Richard Feynman sahab actually outlined the possibility for a new scientific field, okay, which we have come to know as the nanotechnology. उन्होंने ये बोला कि अगर हम इनका मेन लेक्चर का टाइटल भले ये था, बट उनका मतलब क्या था कि इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, ओके, सो वी नो दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल इज व्हाट, इज एटम, दैट मीन्स एनी मटेरियल is made up of by the atoms. So उन्होंने बोला कि एक एटम्स में भी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, ओके, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा क्या है, रूम है, रूम मतलब बिल्कुल खाली जगह, ठीक है, एट द बॉटम, इन द एटम्स, सो वी कैन यूटिलाइज, ठीक है, by the developing the new technology, and by the lecture of the Richard Feynman साहब
ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि द रिचर्ड फ्रीमैन वाज द नोबेल प्राइज विनिंग, ठीक है, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग प्रोफेसर थे। ही वाज अ फिजिसिस्ट, ओके, एंड नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर, व्हाट, फिजिसिस्ट, ओके। सो ही इज नोन एज द व्हाट, अभी इन्होंने ऐसा बोला ना, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट नैनो की बात नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कोई टर्म नहीं यूज किया नैनो टेक्नोलॉजी। सो फॉर दिस द रिचर्ड फ्रीमैन साहब वाज नोन एज द स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, देख रहे हो सब फादर होते हैं, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ओके, ही इज द स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। आई बात सुनने, ओके। सो ओके, अभी 1959 में ऐसा हुआ, ठीक है, देयर इज अनदर साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द अनदर साइंटिस्ट इन दी, अभी ये 1959, ठीक है, इन 1974, ठीक है, in 1974 there is another scientist, name is the Norio Taniguchi, name was the Norio Taniguchi, clear? अब Norio Taniguchi as a name you can see that, so this is the scientist at the Tokyo University of the Tokyo University, ठीक है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। सो नोरियो तानिगुची वाज द साइंटिस्ट ऑफ, ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस, ओके। सो दिस नोरियो तानिगुची actually first time uses the term nanotechnology, okay, the first time used the term nanotechnology, clear? So Norio Taniguchi have credited to coin the term firstly, okay, the nanotechnology, ठीक है, and Norio Taniguchi was the what, scientist of the Tokyo University, Japan, ठीक है, okay. Then the American engineer, अभी दूसरा नाम आता है यहाँ पे अमेरिकन इंजीनियर, बड़ा इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, मगअप करना पड़ेगा आपको, अगर इवोल्यूशन आपसे पूछता है तो आपको लिखने के लिए, ठीक। चलो थोड़ा सा मैं इधर रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक। सो देयर इज अनदर साइंटिस्ट, the scientist from the US, and the name was, the scientist is the he was the an American engineer, ठीक है, he was the American engineer, okay, and the name is K. Eric Drexler, K. Eric Drexler, okay. So K. Eric Drexler is actually credited with the development of the molecular nanotechnology leading to nanosystem machinery manufacturing, okay. K. Eric Drexler is credited for the development of the, ऐसा लिखना, credited for the development of the molecular nanotechnology, okay. If you are just talking about the nanotechnology, we are discussing about the nanotechnology, so K. Eric Drexler is a big name, ठीक है, in this field, okay. He is actually developed the molecular nanotechnology. The nanotechnology and the nano science got a boost in the early 1980s, ठीक है, 1980s में ऐसे कुछ फिनोमिनल इंसिडेंट्स हुए, ठीक है,
through which the nanotechnology and the nanosite got a boost. ठीक है, तो अभी उसमें क्या हुआ था वो बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि what should happen in 1980s. Okay. चलो, in the year of 1980s, ठीक है, 1980s, the major development is here. The first one is the birth of cluster science. Birth of cluster science. Clear? And the second is the what? Second is the scanning tunneling microscope. Invention of scanning tunneling माइक्रोस्कोप. क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी में हमने बात किया था तो हमने ये बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी इज एक्चुअली व्हाट, द बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली गॉट अ बूस्ट, ठीक है, बाय द टू इन्वेंशन. ओके, द इन्वेंशन वाज, द फर्स्ट इन्वेंशन वाज द डिस्कवरी of the structure of the DNA. You can say the structure, double helix structure of the DNA was given by the Watson and Crick. And the second was what? Second was the discovery of the recombinant DNA technology. But in this nanotechnology case, there is also two incidents. The first is the birth of the cluster science, okay, and second is the invention of the scanning tunneling microscope. Okay, actually what is the cluster science? Cluster science means cluster मतलब समझते हो ना, the group of some things. ठीक है, so इस cluster science में पता चला कि बहुत सारे materials क्या होते हैं, मतलब small small particles उसमें क्या होते हैं, attached होते हैं, बहुत सारे clusters होते हैं. Clear? And this invention of scanning tunneling microscope. Actually this microscope is here to measure the behavior of material. ठीक है, this microscope is invented for the measurement of the behavior of the material. And what is actually considered that this what scanning tunneling microscope. ठीक है, होता क्या है इसमें आप ये समझो. इसमें हम करते क्या है ना कि वी हैव द माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड द माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली पॉइंटेड विद अ व्हाट, टंगस्टन टिप. एक टंगस्टन की टिप लगी, तो देखो उसको थोड़ा सा बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कैसे ये काम करता है. ठीक है, देखो okay, like this is the actually tunneling microscope. Clear? Okay. This is the positive charge, okay, and this is the negative charge, okay. This one is considered the what, tungsten tip, okay. This is the tungsten tip, and here the detector is attached. यहाँ पे क्या है, this is the detector,
Clear? What should happen in this case? Actually, electrons behave like waves. We already discussed in the information technology. कैसे? कि dual nature of the electrons. Okay, so electron is also behave like the waves, and they are also able to cross the surface of the material. ठीक है? You can say the material surface and find the best imaging of the material. जैसे अगर किसी भी चीज में इफ यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इफ यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू क्रॉस द व्हाट सरफेस ऑफ दैट मटेरियल्स, क्रॉस करके वो उसमें जाते हैं और उसका बेस्ट इमेज हमें शो करते हैं कि व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस व्हाट मटेरियल और मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मटेरियल. ओके, एंड एक्चुअली दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्या क्या नाम था इसका? दिस इज द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑल्सो कंसिडर द एसटीएम. एसटीएम इज एक्चुअली फॉलोज द क्वांटम फिजिक्स. क्या फॉलो करता है ये? क्वांटम फिजिक्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हियर. ओके, दिस इज ऑल्सो क्वांटम फिजिक्स का क्या है? दिस इज द बेसिक of the quantum physics principle, doctrine of the quantum physics, the dual nature of the electron. The electron is behaving like a what? Like a wave. Okay, chalo, what should happen here? Actually the देखो यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. क्लियर? द करंट इज प्रोवाइडिंग हियर, ठीक, पॉजिटिव फ्रॉम हियर एंड नेगेटिव इन हियर, एंड दिस इज द सैंपल एक्चुअली. ठीक है, ये क्या है? सैंपल है. And this is the tungsten tip. This tip, when the electron is just what? Negatives, ठीक, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, क्लियर, एंड पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा. ठीक है, वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. सो द इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड from the sample, or you can say the surface of the sample, and reached at the positive tungsten tip. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके. एक्चुअली टू डिटरमाइन द बिहेव ऑफ द मटेरियल, देयर इज टू प्रोसेसेस. द टू मेथड्स are involved. The two methods are involving in the this scanning tunneling microscopes. ठीक है, कौन कौन से ऐसे दो मेथड्स हैं? Here the two methods is, the first is the two methods is here. ठीक है, the first one is the constant current, clear, and the second is the constant height. अब देखो, लिसन, वन मोर थिंग इज हियर. कोई भी मटेरियल है ना, उसका सरफेस कभी भी पूरा प्लेन नहीं होता है. ठीक, द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल नेवर इज कंप्लीट प्लेन. ठीक है, कोई भी सरफेस हो, आप ग्लास का सरफेस देखते हो, आपको लगता होगा सबसे प्लेन सरफेस होता है, बट टेक्निकली द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, नेवर इज आइडियल प्लेन. ठीक है, कभी भी वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता है. ठीक, सो वी हैव टेकन द सैंपल हियर. ओके, फ्लो प्रोवाइडिंग द करंट. ठीक, इफ वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस फर्स्ट मेथड इन विच वी हैव टू कांस्टेंट द करंट. ठीक है, सो करंट को हमने क्या करना है? बिल्कुल कांस्टेंट रखना है. ठीक, व्हाट शुड हैपन इन दिस केस? ठीक है, अब करंट इज कांस्टेंट, जितना करंट इसमें आएगा वो उतना उसको प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सेम करंट, मतलब इसमें करंट को हमको वेरी नहीं करना है. द टिप, ये जो टंगस्टन टिप है ना, ये मूवेबल होगी. इन दिस केस, इन द फर्स्ट मेथड, मूवेबल, दैट मीन्स कि ये मूव कर सकेगी. फाइन. एंड व्हेन द सैंपल इज पासिंग थ्रू दिस, तो ये ऑब्जर्व किया गया
कि कहीं पर जैसे सपोज करो कि दिस इज द डेफिनिट हाइट, दिस इज द एच बिटवीन दिस टिप ओके एंड द सैंपल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट है उसके ऊपर रखा हुआ है। जब कांस्टेंट करंट था ओके, सो टिप क्या हुआ, द टिप इज एक्चुअली अप एंड डाउन। ठीक है, टिप इज एक्चुअली अप एंड डाउन। अब सपोज करो कि ये ऐसे सैंपल का क्या है, ये सैंपल की सरफेस है। ठीक, यहाँ पे इसका सरफेस उठा हुआ है, यहाँ नीचे है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ नीचे है। फाइन, सो व्हाट शुड हैपन, करंट इज सेम। अगर ये टंगस्टन टिप यहाँ पहुंचेगा, ठीक, तो ये इससे करंट हाइट कम हो गई। ठीक है, तो करंट बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा इसको, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्लियर, द टिप इज गेट अप ओके। जब यहां पहुंचेगा तो सेम करंट, तो यहां पर टिप क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। ओके, सो द इन द कंडीशन ऑफ द कांस्टेंट करंट, ठीक है, द टिप इज अप एंड डाउन। ठीक, इफ वी हैव जस्ट कांस्टेंट द हाइट, देन व्हाट शुड हैपन, अगर हमने हाइट को क्या किया, फिक्स कर दिया, तो हमें यहाँ पे करंट कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। ओके, देखो सुनो क्लास, इसको आपको बिल्कुल एकदम रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज अ टॉपिक जो कभी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ सके। ठीक है, और इसके चांसेस हो सकते हैं आपसे पूछने के। ठीक, पूछा नहीं गया है तो डोंट बी मगअप दिस। ठीक है, मगअप नहीं करना है इसको, बट हाँ इसको आप समझते रहिए। ठीक, कि हाउ दी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप वर्क्स। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। ओके, सो हियर, अच्छा, वन मोर थिंग इज हियर, द वन मोर क्वेश्चन एक्चुअली इज हियर, एंड द क्वेश्चन इज, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई डू मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली एट द नैनो स्केल, ओके, व्हाई डू materials behave different at nano scale. Clear? That means कि नैनो स्केल पर जो मटेरियल्स हैं, why they behave what different. ठीक है, दैट मीन्स अभी ऐसे आप समझो, अगर कोई भी आइटम है, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल साइज है, तो उसका करेक्टर कुछ और होगा। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द नैनो स्केल और यू कैन से द नैनो साइज, द बिहेव इज चेंज्ड। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअली अगर ऐसे बात करें तो here is especially for the two reasons, for the two reasons. Okay, the first one is the reason is the surface area. Okay, the first is the surface area. That means the very small particles have the larger surface area. ठीक है, जैसे पार्टिकल्स को अगर हम जितना छोटा करते जाएंगे तो सरफेस एरिया उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वाई एंड हाउ। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं। दिस इज द पेन, ठीक, ऐसे समझो, दिस इज एनी मटेरियल। ठीक, क्लियर, 3D पे नहीं बना सकता, आप ऐसे समझो। दिस इज द मटेरियल, व्हाट इज द सरफेस ऑफ दिस मटेरियल, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। ठीक है, यहाँ पे 6 सरफेसेस आपको दिख रहे हैं। ठीक, ओके, नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस मटेरियल और यू कैन से वी कैन चेंज दिस मटेरियल एट द वर्ड एट द नैनो स्केल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको एकदम नैनो स्केल पे हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर दिया। क्लियर, लाइक दिस, बहुत छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया, इसके साइज को रिड्यूस कर दिया। सो बहुत सारे हो गए। ठीक, अभी देखो, सपोज दैट दिस इज द सिंपल पीस। ठीक, अब सिंपल पीस का यहां पे जो यूज हो रहा था, हियर इज दिस पीस, ये पीस यहां पर है। क्लियर, इन दिस केस ठीक है, इसका अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस तो यूज हो रहा था, फाइन,
बट इसका ये साइड वाला सरफेस कहाँ था, ठीक है, ओके, बट व्हेन द साइज इज रिड्यूस दैट मीन्स द हियर इज सरफेस 1, सरफेस 2, 3, 4, 5 एंड जस्ट पीछे उसके 6, तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, ठीक, चलो. So the less size, or you can say the very small particles have the larger size, more surfaces involved in the chemical reactions. अब जितने ज़्यादा surface उतने ज़्यादा वो chemical reaction में क्या होंगे, involve होंगे, ठीक है. So the larger surface area can make the materials more reactive and grains of salt dissolve in water much more quickly than a rock of salt for the sample. हाँ, इसको ऐसे एक सिंपल सा एक सोल्यूशन बताया गया कि जैसे अगर कोई पहले वो नमक आता था ना एकदम रॉक जैसा, इतने बड़े बड़े टुकड़े आते थे, क्लियर, नमक के, सॉल्ट के, क्लियर. तो सॉल्ट को अगर आप डिजोल्व करो उतना बड़ा आप पीस दे करके, ठीक है, इफ़ यू आर डिजोल्विंग इन वाटर सो इट मे बी टेक्स टाइम, ओके, बट इफ़ यू जस्ट व्हाट मेक द पाउडर, उसको जस्ट क्या करो, ग्रिंड कर लो, ठीक है. तो ग्रिंड करने के बाद जो उसको पानी में डिजोल्व कर दो तो इजिली डिजोल्व हो जाएगा, तुरंत डिजोल्व हो जाएगा. वाई? दिस इज द रीजन. वाई? Because by the reduction in the size of the molecules, the surface area get increases. ठीक है, size reduced and the surface area increased. Clear? Okay. The second one is at the nanoscale level, the relative importance of the different laws of the physics shift and the effects that we normally do not notice, such as quantum effects, size less than the 20 nanometer. इन्होंने बोला कि if the size is reduced, okay, so here is the different laws of the physics shifts and affects that, okay, and effects मतलब बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के लॉज होंगे, ठीक है, जो कि क्या कर जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल साइज मॉलिक्यूल पे कर रहे थे, ठीक है. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द व्हाट क्वांटम फिजिक्स, ठीक, आप लोगों ने एवेंजर्स देखा होगा, राइट ना. तो क्वांटम देखो, क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करके वो एंटमैन एंड वास्प वाला जो स्टोरी था वो भी, एंड फिर इसमें क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करके क्या करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं वो लोग, है ना, पीछे जा करके. सो देयर इज व्हाट, देयर इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द लॉज ऑफ द फिजिक्स फॉलोज बाय द नैनो स्केल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एट द नैनो स्केल लेवल. क्लियर? सो दिस इज ड्यू टू द नैनोमीटर साइज ऑफ द मटेरियल्स विच रेंडर देम अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरफेस एटम का लार्ज फ्रैक्शन होगा, ठीक है. हाई सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट मीन्स दी एक सरफेस एक्स्ट्रा हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा वहाँ से रिलीज करेगी, फाइन. एंड स्पेशियल कन्फाइनमेंट ऑल्सो रिड्यूस द इम्परफेक्शन विच डू नॉट एग्जिस्ट इन दी करस्पॉन्डिंग बल्क मटेरियल, ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसके पीछे रीज़न है कि that's why the materials do behave the different at the nano scale, ठीक है. तो ये सब सारे इसके पीछे क्या है, रीजंस हैं. क्लियर? ओके, चलो. सो इन द नैनो टेक्नोलॉजी द मेजर पोर्शन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है. देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसके. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी? Applications of the nano technology, ठीक है. So as we know that the nanotechnology has the numerous applications, ठीक है. The various fields are here, ठीक है, in which the nanotechnology is applicable. Clear? Like something as nanotechnology in medicine, nanotechnology in medicine. Clear? How the nanotechnology is used in the medicine, ठीक. So on the you can say on one application of the nanotech in the medicine currently being developed in the various employing the nanoparticles to deliver drugs, heats, lights or substances to specific types of the cells such as cancer cells. Okay, that means he is talking about that in the field of the medicine
nanotech is being used, okay, to develop the medicines, okay, the medicines, and medicines, or you can say the drugs also, ठीक है, medicines और drugs, ठीक, to specific types of the cells, for the specific types of the cells. जैसे कि if we are just talking about the what, cancer, so we know that cancer is what, cancer is the uncontrolled and the unrelevant growth of the cells is considered as the cancer, okay. And for the cancer therapy, ठीक है, cancer therapy today the chemotherapy is available. क्या अवेलेबल है? कीमोथेरेपी, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आप देखे होंगे कि जब भी कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को दिया जाता है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं उसके, क्लियर। साइड इफ़ेक्ट मीन्स दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है वो, ठीक है। इन द कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है पर्सन जो होता है, पेशेंट जो होता है, बाल उसके झड़ जाते हैं, क्लियर। शरीर पे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिंकल्स, और आप ये बोलो कि बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हो उसको, एकदम वाइट पैचेस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्लियर। सो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट। अच्छा, why this side effect is happen? Actually, when the chemotherapy medicines is taken by the patient, they goes to the what, goes to the site of action, okay, and they are started to kill cancer cells along with normal cells, okay. That means this chemotherapy, or you can say the chemotherapy drug, is actually started to kill the cancer cells along with the normal cells, ठीक है। नॉर्मल सेल्स के साथ उसको भी, नॉर्मल सेल्स को भी क्या करेंगे, किल करेंगे। सो इन दिस केस दिस साइड इफेक्ट इज हैपेंस, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, बाल वगैरह भी झड़ जाते हैं। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द एक्चुअली साइड इफेक्ट ऑफ द व्हाट, कीमोथेरेपी, ओके। अच्छा, वो होता क्यों है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेडिसिन, ओके, देयर साइजेस, ठीक है, देयर साइजेस इज रिस्पॉन्सिव फॉर दिस। साइज इतना बड़ा होता है कि वो जहां जाते हैं तो जितनी साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। सो दिस इज द रीज़न कि वो ऐसा कुछ होने लगता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि बाय यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इतना आई समझ में बात ना, कि इन द कैंसर वी आर यूजिंग द कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, एंड इन कीमोथेरेपी देयर इज अ साइड इफेक्ट, ठीक है। एंड साइड इफेक्ट्स आर क्या, मतलब एकदम बिल्कुल सीन साइड इफेक्ट है, ओके। सो फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स दैट डिलीवर द कीमोथेरेपी ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसर सेल्स, okay. So in this case we can use the nanoparticles, okay, nanoparticles for the delivering the drugs at the targeted cancer cells, okay, at the targeted cancer cells, okay. And actually this nanoparticles, or you can say the development of the nanoparticles is under developing condition, under development, ठीक है।
अंडर डेवलपिंग लिख देते हैं इसको, डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट वर्ड, अंडर डेवलपिंग, ठीक. सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, ओके, द कैंसरस ड्रग इज डिलीवर्ड at the delivered direct at the targeted sites, or you can say the targeted cancer cells. Okay, ठीक है, इतनी बात समझ में. Okay, चलो, the next one is the nanoparticles that release the drugs when passing through a section of artery that mostly blocked by a clot. Okay, that means कि we know that blood clotting, ठीक है, इधर क्या है, blood vessels, and here is the clotting in the blood vessels. Okay, so here nanoparticles are very small in size, so this can easily penetrate this this thrombus, or you can say the clog formed in the blood, ठीक है. तो इस clog को easily penetrate करके उसके अंदर जाएगा, रिएक्शन करके उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. Okay, so this is also for the treatment of the treatment of the many blood artery related diseases. Okay, here is we are talking about some gelatin nanoparticles, ठीक है, about the gelatin nano particles. Okay, ठीक है, gelatin nano particles. So what is the gelatin, what is the use of the gelatin nanoparticles? Actually it can be used to deliver the drugs to the damaged brain tissue more efficiently than the standard method, ठीक है. So gelatin has the tendency to dissolve in the fat. Okay, so we know that कि कोई भी ड्रग्स जो है वो ब्रेन में अगर वो इंटर कर रही है, ओके, so here is the BBB. What is the BBB? Blood brain barrier. Okay, so blood brain barrier is a barrier, ठीक है. और ये बैरियर किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक मेडिसिन जो है क्रॉस नहीं कर पाती ब्रेन्स को, ठीक है. सो ओनली द सम स्पेसिफिक मेडिसिन कैन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. सो in this case the gelatin is actually used, ठीक है. So gelatin nanoparticles can be used to deliver the drugs to damage brain tissues more efficiently than the standard method. So ये nanoparticles किसके लिए, brain disease treatment, ठीक है. तो it can be used, अच्छा, जहाँ पे can भी लगे और will भी लगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं अभी थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट या अंडर डेवलपिंग प्रोसेस में चल रही हैं. क्लियर. ओके, सो नैनो पार्टिकल्स कैन ऑल्सो टेकन ओरली एंड पास थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक, बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स को क्या किया जा सकता है, ओरली लिया जा सकता है, जो कि कहाँ पहुँच जाएगा, इंटेस्टाइन में, एंड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इट कैन रीच इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, one more thing is there. One more thing is, this is the we are just talking about the nano sponges. नैनो स्पंजेस, ठीक है. चलो देखो नैनो स्पंजेस क्या था. स्पंज समझते हो, व्हाट इज द स्पंज? स्पंज हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द व्हाट, एब्जॉर्ब द लिक्विड. ठीक है, देखो सपोज करो कि इफ एनी पर्सन इज व्हाट इनगल्फिंग द पॉइजन, ठीक है, उसने पॉइजन खा लिया. अभी पॉइजन खा लिया एंड पॉइजन को खाए हुए कितनी देर हो गया, मोर देन 2 to 3 आवर्स हो गए कंप्लीट. ओके, दैट मीन्स द पॉइजन इज नाउ रीच्ड इनटू द मेन ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, वैसे बहुत जल्दी पॉइजन पहुंच जाता है, अगर हीमोटॉक्सिक है तो बहुत तेजी से पहुंचेगा ब्लड स्ट्रीम में. ओके, हीमोटॉक्सिक हो गया, न्यूरोटॉक्सिक हो गया, राइट. सो क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में रीच करेगा. ओके, सो इन दिस केस वी कैन यूज दीज नैनो स्पंजेस. दे रीच्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम एंड एब्जॉर्ब द व्हाट, टॉक्सिक मटेरियल, एब्जॉर्ब द टॉक्सिक मटेरियल. अब ये सॉरी जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, ठीक है, उसको ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे. ओके,
So the nano sponges can absorb the toxins and the remove them from the blood stream. अब ये इसके अंदर स्पंज क्या करेगा, इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद फिर ये स्पंज खुद बॉडी से क्या हो जाएगा, वॉश आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, so this is called this is considered the nano sponges. ठीक है, हमने बोला ना कि इफ यू हैव द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मैं दूंगा, क्लियर. इफ यू हैव द क्वेश्चन, आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो कि सर प्लीज क्वेश्चन दीजिए, समथिंग ऐसा कुछ. आप बोलो अगर कमेंट में कि क्वेश्चन दीजिए लिखने के लिए, तो इधर से मैं क्वेश्चंस बना करके ले आऊँ. ओके, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन आप रखो क्लास में. अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो तो आप थोड़ा सा इंटरेक्शन रखो क्लास में. फाइन. ओके, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, अबाउट द नैनो स्पंजेस. क्लियर. नेक्स्ट इज द, तो नैनो स्पंजेस का आपने देखा ना यूज क्या होता है. नेक्स्ट इज द माइक्रोबायोर्स. क्या होता है माइक्रोबायोर्स? माइक्रोबायोर्स क्या होते हैं? एक्चुअली दिस इज द artificially developed the mechanical phagocytes, okay, that can digest the infectious bacteria, ठीक है, from the body. देखो ऐसे समझो, माइक्रोब मीन्स क्या होते हैं? the microbes like the bacterias, okay, viruses etc. ये छोटे छोटे माइक्रोब्स. क्लियर. एंड वोर्स मीन्स क्या होता है? जैसे आपने सुना ना हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स. ओके, लीव्स एंड जो भी आपके कैसे सब्जी वगैरह खाते हो, फूल पत्तियाँ खाते हो, फाइन, समथिंग दे आर हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मीट. ओके, ओमनीवोर्स, दैट मीन्स कि द एनिमल्स दैट कैन टेक एनीथिंग्स, meats as well as the what herbs also. Okay, so they are the omnivores. So like this there is what, there is the microbiores, microbiores. Okay, microbiores. Okay, so these are the what, these are the artificially developed the mechanical phagocytes. ठीक है, तो these are the artificially mechanical phagocytes. ठीक है. इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इन द सेल चैप्टर, वी हैव डिस्कस अबाउट द फैगोसाइटोसिस. ठीक है, हमने वहां पे बात किया था क्या होता है फैगोसाइटोसिस. अच्छा, कुछ ऑनलाइन है कोई बच्चे हैं? वेरी फर्स्ट क्लास ना वी हैव just discuss about the phagocytosis. Phagocytosis what? Phagocytosis was the engulfing process of the cell. ठीक है, through which the cell can engulf the materials which is available in solid form. तो solid material का जो engulfing process होता है, this is considered as a phagocytosis. Okay, and the cells which can perform the phagocytosis process is considered as phagocytes. So here the microbiores is considered the artificially mechanical phagocytes. ठीक, तो अभी वो बॉडी में क्या हो जाएंगे, वो जाएंगे नैनोसाइज. दीज आर द नैनोसाइज ऑल्सो. ठीक है, सो दे इंटर्ड इनटू द बॉडी एंड दे कैन किल द harmful bacterias, okay, from body. ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करेंगे. ठीक, द नेक्स्ट वन इज द नैनो टेक्नोलॉजी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज ऑल्सो कंसिडर द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स. नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, actually in the electronics the nanotechnology is mostly using actually.
और इसमें पूरा कंप्लीट बहुत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। A low power method to use the nanomagnets as the switches like the transistors, okay, in electrical circuits is also into the consideration for the development. देखो इसमें होगा क्या, the low power method to use the nanomagnets, ठीक है, and this nanomagnets is as a switches, ठीक है, and switches like what, like transistor, like the transistor, clear। so आप सब जानते होंगे कि what is क्या, एक अगर ट्रांजिस्टर की बात करें so what is the transistor, actually transistor is nothing, this is a semiconductor device used to amplify or switch electrical signal and the power, ठीक। ये एक तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंसीडर एज द व्हाट आर द कंसीडर एज द सेमीकंडक्टर, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि करते क्या हैं कि जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, उनके बीच में क्या करते हैं, एक तरीके का लिंक बनाते हैं, ओके। सो द सेमीकंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस विद प्रॉपर्टीज समवेयर बिटवीन देम integrated circuit and the electronic discrete components such as diode and transistors are made of semiconductor common elements semiconductors are the silicon and the germanium, ठीक है। so silicon and germanium is considered as a semiconductor, okay, and these semiconductors are actually using for the what, transmitting the electrical signal actually, okay। so in this case the nanomagnets are used in the switches like the ट्रांजिस्टर्स, ओके। और ट्रांजिस्टर आपको पता ही है कि व्हाट शुड बी कंसीडर द ट्रांजिस्टर, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ डिवाइस ऑफ द सेमीकंडक्टर, दिस इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड दिस इज यूज्ड टू द एम्पलीफाई और स्विच द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड द पावर, ठीक। ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, अलाउ करता है, पास करता है, ठीक। अब देखो, अब इसमें आप ये समझो कि इफ यू आर यूजिंग द नैनो मैग्नेट्स, सो दैट मीन्स इन दिस केस द साइज ऑफ द स्विचेस is also get reduced, okay। if the size of the switches like the transistors get reduced, अगर आपने वो देखा हो कभी पुरानी जो टीवीज की जो प्लेट्स वगैरह आती थी उसमें सर्किट्स वगैरह लगे रहते थे, ओके। सो आपने देखा उसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे ऐड रहते थे उसमें ना, so these are the actually transistors and transistors consider the some diodes and triodes are also there, clear। so these are the transistors। तो in this case what should happen, this is reducing the size and enhancing the capability for what, capability for the transmission of the electrical signals, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहां पे उसमें ट्रांसमिट होगा एंड बाय रिड्यूसिंग द साइज देयर इज द लेस कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिक्स करंट, ओके। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का लेस क्या होगा, कंजप्शन होगा। व्हाट शुड हैपन इन दिस केस, अगर इलेक्ट्रिक करंट का कम कंजप्शन होगा और कंजप्शन बहुत रिड्यूस कर जाएगा, सो इन दिस केस जो हमारे डिवाइसेस हैं ये कैसी होंगी, दीज आर द कंसीडर एज द इलेक्ट्रिक फ्रेंडली डिवाइसेस, ठीक। आज अगर आप रेफ्रिजरेटर लेते हो तो इन योर रेफ्रिजरेटर देयर वाज अ व्हाट, देयर वाज अ इंफॉर्मेशन लीफलेट्स एट दिस द रिटन दिस इज द 65 यूनिट पर एनम कंजप्शन, 165 यूनिट of the electricity is consumed by your refrigerator annually, कितना 165 यूनिट, कुछ नहीं होता 160, 200 यूनिट तो केजरीवाल फ्री दे देता है ना। तो आप इजीली, अब क्या ये क्या है, और अच्छा एक चीज और, दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग द लेस इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से द लो इलेक्ट्रिक करंट, सो इट कैन इजिली वर्क एट द लो करंट ऑल्सो, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि लो करंट पे भी बहुत आराम से चलते हैं। पहले क्या होते थे, पहले जो आते थे उनको अप्रॉक्स 250 वोल्ट और 300 वोल्ट करंट की नीड होती थी। अभी अगर 200 वोल्ट भी है ना तो
दे कैन रन। ठीक है, तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो तो अभी ऐसे समझो, नेक्स्ट इज द transistor in the electrical circuit is also into the consideration for the development, and this method might lead to the electric circuit with much lower power consumption than the transistor based circuit. Okay, that means ki in any circuit if the transistors are using, so that means it is leading the low power consumption actually. ठीक है, तो आप आजकल मोस्टली सब में ऐसे ही आ रहे हैं, अभी टीवी वगैरह में भी सारे क्या है ना कि वही सारे नैनो ट्रांजिस्टर्स लग करके आ रहे हैं। क्लियर? ओके, यूजिंग द सेमीकंडक्टर नैनो वायर्स टू बिल्ड द ट्रांजिस्टर्स एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट। हमने बताया ना कि द नैनो वायर्स एक्चुअली यूजिंग, ठीक है, इन फॉर द व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। सो नैनो वायर्स यूज किया जाएगा तो ट्रांजिस्टर्स का साइज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ओके, एंड अल्टीमेटली दिस ऑल थिंग्स आर लीडिंग द व्हाट, all things leading the low power consumption. Clear? Okay, so using the nano size the magnetic rings to make the magnetos resistive random access memory, which research has indicated may allow the memory density of 400 GB per square inch. ठीक है, बोल रहे हैं कि जो हमारा रैम होता है ना, ठीक है, रैम, कंप्यूटर का रैम, रोम, दो चीज़ होता है ना। अभी बोलते ना कि कितना रैम है, रैम कितना है, मतलब कि कंप्यूटर या आपके मोबाइल फ़ोन का व्हाट इज़ द रैम, व्हाट इज दिस इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जितना रैम होता है ना उतना उसकी क्या होती है, जो लेटेंसी होती है प्रोसेसिंग की उतना कम हो जाती है। क्लियर? उतनी अच्छे से वर्क करता है हमारा अगर रैम अच्छा है तो। फाइन, सो बाय यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी वी आर एक्चुअली डेवलपिंग द वर्ड मैग्नेटो resistive random access memory. Okay, magnetoresistive, that means कि it is actually providing the what, memory density of the 400 GB per square inch। मतलब कि अगर हम उसमें जो डिवाइसेस बनेगी ना, बहुत छोटी डिवाइसेस में ही कितना 400 GB का क्या कर सकते हैं हम, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स कि रैम का जो साइज है वो भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, so building the transistor from carbon nanotubes to enable the minimum transistor dimensions of the few nanometers. Okay, so normal जो carbon tubes हैं उनके साइज को reduce किया जा रहा है। ठीक, so by using the nano carbon tubes, okay, so transistors building also, the building of the transistors also get reduced in the size। ठीक है, उसका भी साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपके साथ पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट भी किए जा रहे हैं, दीज आर अंडर प्रोसेसिंग, एंड जैसे व्हाट, लाइक द, अभी बात करेंगे लाइक द सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ। ओके, सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ, दैट मीन्स कि आपके पास वो कपड़ा है, आप उसको पहनोगे एंड उसको कभी आपको क्लीन करने की या वॉश करने की या ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी फॉर द सेल्फ क्लीनिंग। ठीक, उसे तो नॉर्मल पहनोगे, उसको उतार करके बस एक बार उसको आप ऐसे झाड़ना है, उसके बाद वो अपने आप सारे धूल इसमें से निकल जाएंगे, क्या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो भी लगे होंगे। तो दीज आर द व्हाट, सेल्फ क्लीनिंग व्हाट, क्या बोल सकते हो, क्लॉथ्स बोल सकते हो। ठीक है, चलो, नैनो टेक्नोलॉजी इन द फूड, इन द फूड इंडस्ट्री द नैनो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन अ वेरी वाइड, आप कह सकते हो कि एरिया। ठीक है, सो application in food. Okay, application in food, actually बहुत सारे जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं ना, so the storage bins are here, storage bins what, जैसे कि कोई भी चीज स्टोर किया जाता है, like टेट्रा पैक स्टोरेज, you can say the tin vessels storage। ठीक, प्लास्टिक स्टोरेज, अभी आपने देखना ना, उससे जैसे आपने वो लिया कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, टिन के क्या होते हैं, कैन होते हैं, है ना, तो जो कैन होते हैं वो कैन में क्या स्टोर किया जाता है, तो these are the what, these are the storage bins। okay, so storage bins are being the produced with the silver nano particles। ठीक है, अब इसमें स्टोरेज बिन्स में क्या करेंगे, we can use the silver nano particles। ठीक है, during the production of the material for the development of the storage bins। okay, so in this case the silver nanoparticles embedded in the plastic। ठीक है, तो प्लास्टिक में क्या कर सकते हैं, इसको embedded in
in plastic. Okay, in plastic. So silver have tendency to kill the bacteria. ठीक है, to kill the bacteria. अच्छा, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह देखा होगा ना, तो मूवीज़ में ऐसा होता है ना कि जो वैम्पायर्स होते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं कि अगर आप वो सिल्वर वाली अगर उनके ऊपर आपने बुलेट यूज़ कर लिया तो उनको क्या हो जाते हैं, वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, आप उनको मार सकते हो इजीली, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह में देखा हो. सो दिस इज एक्चुअली, अच्छा वैम्पायर्स बनते कैसे हैं, वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से वैम्पायर्स बनते हैं, क्लियर. तो सिल्वर इज एक्चुअली बैक्टीरिसाइडल्स इन द नेचर, ठीक है, ठीक है, सिल्वर इज बैक्टीरिसाइडल इन द नेचर. और बहुत सारे इसके आपने एग्जांपल भी देखा होगा. सिल्वर में पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, तो चांदी की थालियों में खाते थे, राइट, सिल्वर प्लेट्स में खाना खाते थे, है ना, सिल्वर प्लेट्स में पानी पीते थे. कुछ लोग तांबे वगैरह का भी है प्रोविज़न, अभी भी बहुत सारे लोग कॉपर के पॉट में क्या करते हैं, पानी रख करके पीते हैं, ठीक है. ओके, सो दिस इज द हाँ. So embedded in the plastic kill the bacteria from any material, minimizing the health risk from the what harmful bacteria. अभी क्या है कि इसको ये जो बैक्टीरिया किल करेगा, तो this is leading what, this is minimizing the health risk, minimizing the health risk, ठीक है. Okay, so silver nanoparticles can be used in the what development of the storage bins, clear. Okay, some silicate nanoparticles के बारे में यहाँ बात करेंगे. silicate nano particles. silicate आप समझते हो ना, SiO2, okay, silicon से to provide the barrier to gases or moisture in the plastic films used for the package, reduce the food spoiling and drying out the possibilities. देखो एक्चुअली होता क्या है, सिलिकेट इज एक्चुअली व्हाट हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, आपने देखा होगा जब भी कभी आप शूज़ वगैरह लेने जाओ, है ना, या बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल भी, जैसे मोस्टली मैं उनके बारे में बात करूंगा जो लोग थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करते होंगे, ठीक है, और दे आर यूजिंग द सप्लीमेंट्स, ठीक है, सप्लीमेंट का यूज़ करते होंगे. तो जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह लेने जाते हैं ना, इंक्लूडिंग लाइक द सम अमीनो एसिड्स या यू कैन द प्री वर्कआउट वगैरह, क्रिएटिन वगैरह, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा पैकेट रहता है जो कि कवर्ड रहता है और वो उसी में डाला रहता है. एंड क्या उसका यूज़ क्या होता है, एक्चुअली दैट वाज द सिलिकेट पैकेट, ठीक है. तो सिलिकेट पैकेट, सिलिका हैव टेंडेंसी to absorb the water droplets, or you can say it is using for the inhibiting the moistures, ठीक है. So silicate nanoparticles actually providing the barriers to the gases or moisture in the plastic film used for the packaging. अभी जो प्लास्टिक फिल्म होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज रैप करते हैं, ओके. सो इन दिस प्लास्टिक फिल्म वी कैन यूज दिस सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स. अब उसमें सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स हम उसमें यूज करेंगे, तो दिस इज प्रोवाइडिंग द बैरियर्स फॉर द गैसेस एंड द मॉइस्चर्स. तो अभी बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर का जो भी मॉइस्चर एंड गैस है ना, इट विल नॉट अलाउ टू एंटर द मॉइस्चर एंड गैसेस टू द फूड मटेरियल. सो इट इज एक्चुअली टैकलिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द what food spoiling and drying out possibilities, ठीक है, and drying out possibilities. So this is the use of the silicate nanoparticle. अच्छा, pesticide encapsulated in nanoparticles, ठीक है. In the pesticides it is also used. Pesticide encapsulated in nano particles, ठीक है. That means कि only release the pesticide within an insect's stomachs, minimizing the contamination of plants themselves, ठीक है. बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे पेस्टिसाइड इनकैप्सुलेटेड जो मटेरियल नैनो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि
जैसे क्रॉपिंग वगैरह हो रही तो वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो दिस इज इंटर्स इनटू द व्हाट इंसेक्ट स्टमक एंड वो क्या करेंगे, जैसे स्टमक में जाएंगे इंसेक्ट्स के, दे रिलीज द पेस्टिसाइड्स, ठीक है, मतलब कैप्सूल्स होंगे, पेस्टिसाइड्स कैप्सूल्स होंगे, ओके। उनको क्या करेंगे कि जो भी हमारा फार्म एरिया होगा ना, फार्म लैंड्स होंगे जहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, तो उधर हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल फैला देंगे, ठीक। व्हेन द इंसेक्ट्स इज इन्वेडेड ओवर देयर, ओके, तो करेगा क्या, उसको उसके अंदर बॉडी में जाएगा एंड व्हेन इट रीच्ड इनटू द स्टमक ऑफ द इंसेक्ट्स, ओके, सो इट स्टार्टेड टू रिलीज द पेस्टिसाइड्स। अब जब पेस्टिसाइड्स उसके अंदर रिलीज होगा तो पेस्टिसाइड्स काइंड ऑफ द टॉक्सिन्स फॉर द वर्ड पेस्ट और यू कैन से द इंसेक्ट, तो उसको खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्लियर। सो इसमें भी यूज किया जा सकता है, ओके ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द नैनो टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, ठीक। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। nanotechnology in agriculture. So nanotechnology, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो सो नैनो पार्टिकल्स कैन सर्व एज द मैजिक बुलेट्स containing the herbicides, chemicals or genes which target particular plant parts to release their context. Actually उसमें होगा क्या कि it can also use the some nanoparticles, ठीक है, nanoparticles as magic bullets, ठीक है। and these nanoparticles is actually containing the herbicides, ठीक। these magic bullets containing the क्या होंगे, इसमें herbicides होंगे, herbicides, clear। and what is the function of these herbicides? जो भी हमारे वीड्स होते हैं, जो भी हर्ब्स होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्चुअल क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, एक्चुअल क्रॉप स्पीसीज, ठीक। तो उनके लिए जो भी क्या होते हैं हार्मफुल ऐसे होंगे, तो दीज हर्बिसाइड्स इज व्हाट टू प्रोहिबिट द growth of herbs, also consider the weeds, okay। so herbicides and weedicides magic bullets होंगी, clear। so this chemical और genes इसमें containing herbicides, chemical genes ऐसे which target the particular plants parts to release their context, ठीक है। तो पर्टिकुलर, अच्छा ऐसे कुछ हो सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, कुछ ऐसे केमिकल्स हों, कुछ ऐसे जीन्स हों, ठीक है, जो कि टारगेट प्लांट पे जाकर के, प्लांट के पार्ट्स पे जाकर के एक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि वी नो दैट कि इफ अगर कोई प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, ओके, सो इन दिस केस जिब्रेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट, ठीक। सो जिब्रेलिन हार्मोन्स को क्या करेंगे, द नैनो पार्टिकल्स ऑफ द जिब्रेलिन हार्मोन्स इज कंसीडर द मैजिक बुलेट इन दैट केस, ठीक है। तो उसमें वो क्या करेगा, वो जाकर के उसके प्लांट के पार्ट्स पर, उसके फ्लावर्स वाले पार्ट्स पर जाकर के वो अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। दिस द जिब्रेलिन लाइक हार्मोन्स, ओके, एंड दिस इज रिलीज ओवर देयर, ठीक, एंड प्रोड्यूस द इफेक्ट, ठीक है, एंड देन द फ्लावरिंग इज अकर्स, ठीक। तो ये चीज कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज लाइक द नैनो सेंसर्स एंड द nano based smart delivery system could help in the efficient use of agriculture natural sources like the water, nutrients and the chemical through the precision farming. Through the nanomaterials and the GPS with satellites imaging of field could remotely detect the crop pest or evidences of stress such as drought. अब देखो इसमें हो गया जैसे नैनो सेंसर्स, ठीक। द नैनो सेंसर्स
of this is the kind of the sensors, ठीक है, and the sensors having the nano size is considered the what nano sensor. अभी हम करेंगे क्या कि इस नैनो साइज को पर्टिकुलर किसी एरिया में क्या किया जाएगा, इन एनी एरिया फ्रीली मूव कराएंगे इसको, ठीक है, उस एरिया में इसको क्या करेंगे, छेड़ेंगे. एंड दिस नैनो सेंसर्स इज अटैच्ड विद द जीपीएस एंड द सैटेलाइट कंट्रोल. ओके, तो ऐसे एरिया में जहां पे ज्योग्राफिकल टेरन ऐसा है कि वहां पे मतलब कि बॉडीली वहां पे प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इन दिस केस द नैनो जो भी हमारे सेंसर्स हैं, वी कैन यूज दीज नैनो सेंसर्स, ओके, इन एरिया इन एन एरिया, ओके, इन अ फ्रीली मूवेबल, एंड दीज नैनो सेंसर्स हैव द जीपीएस टेंडेंसी. दैट मीन्स कि अगर हम उसको चाहेंगे तो यहाँ से बैठे बैठे कहीं से कंट्रोल यूनिट से बैठ के डील कर सकते हैं कि किस एरिया में उनको फ्लो क्या करना है, फ्लाई करना है. ओके, एंड दे गैदर द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट कंट्रोल्स. ठीक, तो ऐसे एरिया जहाँ पे ड्रॉट होने के चांसेस हैं, ठीक है, बाढ़ हो सकता है और सूखा पड़ सकता है. क्लियर? So in this kind of the area can be detected by the using the what? Using the nano sensors. Okay. चलो, so nano sensors displayed in the field can also detect the presence of plant viruses and the level of the soil nutrients. अब देखो, अब क्या है ना कि these nano sensors are also using for the what? For the detection of the plant viruses. We know that so many plant diseases is carried out by the viruses, okay, by the different kind of the harmful viruses. ठीक, so we can use these nano sensors for the detection of this kind of the viruses. Clear? Apart from this, जैसे अगर हमने ये भी बात किया कि this is also can be used for the detection of the level of the soil nutrients. Okay, तो अब जैसे सेंसर्स हैं, some sensors are here which are actually responsible for the development, or you can say for the production of the sensors regarding the specific type of the gases or specific types of the metals. ठीक, तो ऐसा कुछ अगर metals अगर उस एरिया में पर्टिकुलर पाया जाएगा तो they can provide the information regarding that. Okay, so अब वहाँ पर अगर ऐसी information हमें मिल गया है, so now we can further initiate our project in that particular area. ठीक है? Okay, so through the nanotechnology the scientists are able to study the plants regulation of the hormone such as auxins. ठीक है, अब बताया ना कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइंटिस्ट आर एबल टू स्टडी प्लांट्स रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन्स. ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, साइटोकाइनिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं. ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है. सो वी विल डिस्कस इन दी फर्दर क्लासेस कि कौन कौन से प्लांट बायोलॉजी जब करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे. क्लियर? ओके, चलो, नेक्स्ट इज द नैनो टेक्नोलॉजी इन स्पेस. अब इस पे बात कर लेते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी इन स्पेस. Okay, so that means कि in the space research the nanotechnology is also used. Okay, like if the space agency is planning for the what development of the any type of the spacecrafts or satellites or launch vehicles, so the size and the weight of the spacecraft, satellites and the launch vehicles matters. ठीक है, and this is actually matters in a very आप कह सकते हो in a large context. ठीक है, मतलब उसका साइज कितना हो, उसका वेट कितना हो, ये बहुत मैटर करता है. ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी काइंड ऑफ द स्पेस प्रोजेक्ट और स्पेस मिशन लाइक द स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट्स और द लॉन्च व्हीकल्स ऑल्सो. ओके, सो बाय यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, we can reduce the weight of the spaceship. ठीक है, employing materials made from the carbon nanotubes. Okay, that means जो भी उसमें materials या जो भी उसमें devices use किए जा रहे हैं, by using the carbon nanotubes we can reduce the size
of the size of the spaceships or spacecraft. Okay, and by reducing the size, this is also reducing the weight of that spacecraft, or you can say that space flight, or you can say the space satellite as well. Clear? Okay, so here is इंक्लूडिंग द लेयर्स ऑफ द बायो नैनो रोबोट्स. चलो देखो अब एक चीज यहां पे आ गया, बायो नैनो रोबोट्स. क्लियर? इन द रोबोटिक्स वी विल हैव टू बी डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ द रोबोट्स. ठीक है, रोबोटिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा उसमें भी हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे. व्हाट आर द कंसीडर एज द बायो नैनो रोबोट्स. एक्चुअली देखो होता क्या है, बायो नैनो रोबोट्स आर, देखो बायो भी है, नैनो भी है, रोबोट्स है. दैट मीन्स दे कैन अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एनीवन. ठीक है, अभी इसमें होगा क्या, द बायो नैनो रोबोट इज प्लेस्ड इन स्पेस सूट्स. क्लियर? अब देखो, अभी स्पेस सूट्स जो होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट सॉरी जो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं वो जो स्पेस में जाते हैं लोग, है ना, एस्ट्रोनॉट्स. यस, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट. हाँ, सो एस्ट्रोनॉट्स आर यूजिंग द वर्ड स्पेस सूट्स. क्लियर? और स्पेस सूट्स को पहन के वो जाते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पेस सूट? स्पेस सूट्स एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ इंटरनल एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, एज वेल एज इट इज ऑल्सो maintain the pressure which is exerted at the space. ठीक है, over the body. ठीक, तीन सब चीज को ये मेंटेन करता है. अगर सपोज करो इन द स्पेस, ठीक है, द स्पेस शुड गेट पंक्चर्ड. स्पेस शुड क्या हो गया, पंक्चर्ड हो गया. तो इन दिस केस these bio nano robots are here to seal up the punctures. ओके, देखो इनके पास सेंसर्स होगा. ओके, ये सेंसर्स लगे होंगे एंड इनको ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ वहां पर क्या हो गया है, स्पेस सूट कहीं पे डैमेज हो गया है, ठीक, पंक्चर हो गया है. क्लियर? सो वो तुरंत वहां पे ट्रैवल करके जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पंक्चर को क्या कर देंगे, सील अप कर देंगे, उसको बिल्कुल से बंद कर देंगे. ठीक, सो इट कैन प्रोटेक्ट द व्हाट, इट कैन प्रोटेक्ट द प्रेशर exerted over the space suit by the space atmosphere. ठीक है, उसके अलावा this an inner layer of the bio nano robots could respond if astronauts were in trouble, for example by providing drugs in the medical emergency. अब देखो ये बोल रहे हैं कि जो outer जो bio nano robots थे, so they have tendency to seal up the punctures of the what space suit. अगर space suits का inner जो layer है, inner layer, clear? So in the inner layer, ठीक, the bio nano robots are also available. Okay, and they are very used to help the astronauts for better survival. Okay, अब उसमें एग्जाम्पल भी दिया. सपोज दैट इफ द एस्ट्रोनॉट इज इन ट्रबल, लाइक कि अगर उसको ऐसा लगे कि ही इज एक्चुअली रियलाइजिंग फॉर द नीड ऑफ द मेडिसिन. ओके, सो इन दिस केस दिस इज प्रोवाइडिंग द व्हाट मेडिसिन टू द एस्ट्रोनॉट. वो क्या करेंगे, अगर उनको इंजेक्ट करके भी देना होगा ना, तो दे हैव टेंडेंसी, तो वो क्या करेंगे, मेडिसिन को लेके इंजेक्ट कर देंगे. या आप ये समझो कि दे आर नैनो साइज्ड. ओके, सो इजीली वो क्या है,
बाय दी दिस वे आप कह सकते हो कि ओरली और यू कैन से द नेजल कैविटी के थ्रू क्या करेंगे, वो बॉडी में इंटर्स कर जाएंगे, ठीक है, इंटर कर जाएंगे, और इंटर करने के बाद दे विल प्रोवाइड द मेडिसिन टू द बॉडी। क्लियर, इतनी बात हुई क्लियर? ओके, so these are the condition, these are the considered as the bio nano robots. Clear? Okay. The nanosensors to such the large area of the planets such as the Mars for the traces of the water or other chemicals. मतलब bio nano sensors भी use किए जा रहे हैं। तो nano sensors that have the sense what have the power to create the senses regarding the particular materials or you can say in a particular atmospheric conditions. Okay, जैसे कि अगर मार्स पर गए हैं तो मार्स पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वी आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट दैट। सो इन दैट केस तो बायोसेंसर्स होंगे तो छोटे इन साइज होंगे, बहुत इजीली स्प्रेड आउट होंगे, तो इट कैन बी डिलीवर्ड फॉर द कवरिंग द लार्जर एरिया एज वेल। ठीक है, तो ये बहुत सारे एक लंबे एरिया को क्या कर सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द use or applications of the nanotechnology in the space. Okay, now the next is the nanotechnology in reducing the pollutions. Nanotechnology in reducing pollutions. देखो, that means the nanotech can improve the performance and the cost of the catalyst by increasing the surface area, okay, which transform the vapors escaping from cars or industrial plants into the harmful gases. देखो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे so many catalysts. What are the catalysts? Catalyst. What can consider the catalyst? The catalyst are the reagent. ये क्या होते हैं, एक तरीके के reagent होते हैं. These are the chemical reagent, ठीक है, which is actually using to increase the rate of chemical reaction, and they do not involve in the reaction. ठीक है, तो catalyst are those, okay, these are considered the reagent which is increases the rate of chemical reactions, but they do not involve in the reaction. Okay, वो reactions में क्या होंगे, involve नहीं होंगे. ठीक है, okay, so होता क्या है कि जैसे from the क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे suppose that the oil refineries होती हैं, okay, so many harmful gases are created in the refining of the oil, as well as from the vehicles the many of the poisonous gases are releases. ठीक है, so in this case so many catalysts are using for the conversion of those harmful gases, ठीक है, into the normal gases. This is not harmful. Okay, so the catalyst which is using, so we can use the nanotechnology and we can reduce the what, reduce the size of this catalyst. So here the nano catalyst is formed. Nano catalyst is formed. That means this nano catalyst is providing the more surface area, ठीक है, which is comes into the contacts of the chemical reactions, and the larger or you can say the more amount of the harmful gases, ठीक है, is allowed to change into the non harmful gases.
ठीक है। तो जितना उसका साइज कम हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया उतना इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? ओके। नैनो स्ट्रक्चर एयर फिल्टर्ड आर बीइंग डेवलप्ड बाय द सेपरेट CO2 फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट एग्जॉस्ट स्टीम्स। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्या हैं कि नैनो स्ट्रक्चर्ड फिल्टर्स, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर फिल्टर्स इज एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड, ठीक है। अभी ये भी क्या है, बीइंग डेवलप्ड, ठीक। एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ द फिल्टर्स, ठीक है, these filters will be able to filter out the some kind of the oxygens, ठीक है, specific kind of the oxygens like the CO2, ओके। तो अभी जो भी मतलब कि वहाँ से इंडस्ट्रियल प्लांट का जो भी एग्जॉस्ट है, ठीक है, जब वो स्मोक के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एट द माउथ ऑफ दैट चिमनी, ठीक है, जो भी चिमनी होगी उसके माउथ पे क्या करेंगे, वी विल यूज द nano structure filters, and this filters is actually used to filter out the carbon dioxide molecules. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, वो फिल्टर आउट कर देगा, ओके। सो बाय दिस इट prohibits the introduction of the carbon dioxide in the atmosphere, ठीक है। तो इस तरीके से वो नहीं जा पाएगा एटमॉस्फेयर में। क्लियर? Okay, chalo. The next point is that a filter of few nanometers is in diameter is currently being developed that should be capable of removing virus from the water. हाँ, ठीक है। अब ऐसे फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर, ठीक है। You can say the nano filter for removing of viruses from water, clear? Okay, so here some nano scavengers are here, nano scavenger, nano scavenger। अच्छा, व्हाट आर द स्कैवेंजर? क्या होते हैं स्कैवेंजर्स? देखो, स्कैवेंजर्स ऐसी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की, विच इज एक्चुअली एक्ट्स एज अ डिटर्जेंट, ठीक है, इन आवर एटमॉस्फियर, इन एट आवर ऑन द अर्थ, ठीक है। ये एक तरीके के डिटर्जेंट की तरह यूज करते हैं। दे कैन कंज्यूम द डेड, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द स्कैवेंजर्स लाइक द हाइना समझते हो ना, हिंदी में लकड़बग्गा बोलते हैं, आई थिंक, ओके। सो हाइना आर द स्कैवेंजर्स। और आपने देखा होगा कि, और सम जैकॉल समझते हो, और यू कैन से wild dogs, okay, jackal, wild dogs, some fox. So these are the actually scavengers, okay. They actually fulfill their requirement of the food, ठीक है, from the dead living organism, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी मर चुके होते हैं ना, ठीक है, उनको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ओके। सो हियर द नैनो स्कैवेंजर्स, ओके, इज यूजिंग द सिल्वर नैनो पार्टिकल, ठीक है, अटैच टू किल द बैक्टीरिया। सो दैट मीन्स इन द नैनो स्कैवेंजर्स द सिल्वर नैनो पार्टिकल्स will be used. Silver nanoparticles will be used,
ठीक है, एंड यूज टू किल द बैक्टीरिया, यूज टू किल द बैक्टीरिया। ओके, तो ये बैक्टीरिया को क्या करेंगे, किल करने के लिए इसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाएगा, किसमें, इन द नैनो स्कैवेंजर्स। ठीक है, ओके, सो हाँ, नेक्स्ट इज द कार्बन नैनो ट्यूब्स वन आर बीइंग डेवलप्ड टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। ठीक है, बाय एडिंग द बोरॉन एटम्स in carbon nanotubes grow in a sponge like material that can absorb oil spills। देखो इसमें होगा क्या ना, the carbon nanotubes, actually the carbon nanotubes are also in the nano in size। ठीक, just okay, so carbon nanotubes, ठीक है, is being developed and in which we can use the boron in carbon nanotubes। Okay, so this boron carbon nanotubes is acts as a what, sponges like, ठीक, so it can absorb the oil spills। ठीक, so ये क्या करेंगे, ऑयल स्पिल्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लियांगे। सो दिस इज यूज फॉर द ऑयल क्लीनिंग। अब जैसे सपोज करो कि अगर कोई ओशन वगैरह में बहुत सारा कंटेनर अगर पलट गया है, सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ द नैनो कार्बन ट्यूब्स। ठीक है, बोरान नैनो कार्बन ट्यूब्स फॉर द एब्जॉर्बिंग ऑफ द ऑयल स्पिल। ठीक है, तो इसमें कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक द सम चैलेंजेस एंड द रिस्क रिलेटेड टू द नैनो टेक्नोलॉजी। सो वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो whenever the next class would be held, so we will discuss the further topics. So for the today this is enough and hope you guys will enjoy this session. So